Hello students, how are you all? I'm hoping that you all are safe and fine at home. Our chapter 11, that is transportation in animals and plants, is going on, and this chapter is my personal favorite because it relates with ourselves. So I'm hoping so you are also enjoying with me. I'm enjoying in teaching and you are enjoying in learning. I'm hoping so. So yes, in this chapter many of the topics we have covered. So our today's topic is blood circulation in human body. So yes, how the blood circulates in our human body. We did about the blood, we discussed about heart. So now how it circulates in our body, we are going to discuss that thing. Okay, so yes, here I made one diagram regarding this. So don't look at the diagram क्योंकि वो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, because बोर्ड पे बनाना it's like different thing और notebook पे बनाना it's like different thing. So you have to make it proper in your notebook. So this diagram is very important when we are talking about the circulation. Yes, in human body it's a double circulation. इसका क्या मतलब है ये मैं आपको अभी बताऊंगी. Before that, first we are going to discuss about this circulation. ये diagram है क्या? Let me clear you first. These are our lungs. It is not like कि आपको पूरा specific lungs का diagram बनाना है यहाँ पर. No, because we are showing here only circulation. So we just have to make the lungs. So we can make like simple boxes also. ऐसे भी बना सकते हैं और heart को हम ऐसे भी बना सकते हैं. It doesn't make any sense. मतलब doesn't make any change. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक अच्छा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू शो 2 lungs and 4 chambers of the heart. That's it. ठीक है. These are lungs. This is heart. Yes, हार्ट में हमें पता है कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 chambers are there. So I have written all 4 names here. These are capillaries. Dividation of the capillaries, formation of the vein, and then मतलब formation of the artery. यहाँ पर क्या है? Then again formation of the capillaries, and then this is generally a vein, but this is particularly pulmonary artery. ये हमने किया है. pulmonary artery क्या है, rest of the arteries क्या है, pulmonary vein क्या है, and rest of the veins क्या है. You can check it out in my previous video. So I have clearly mentioned or clearly discussed about each and everything. Okay, so वो आपको वहां से पता लग सकता है. Red color, as I told you before, also indicates the presence of oxygen in the blood. That means it is a oxygenated blood. Blue color indicates the absence of oxygen or presence of carbon dioxide, we can say. So it is a deoxygenated blood. So that's why I have made with blue color marker. You also have to try to make the diagrams like this only by using different colors pens. So it will be visualization wise it is very good. So आपको इस तरह से कोशिश करना होता है कि आप उसको बना सको. ठीक है. So now I am going to tell you how the blood circulates in the body. So ठीक है. First of all, we know that कि oxygen enters into other lungs part of the body. यहाँ से ऑक्सीजन एंटर किया बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स. यहाँ पे जो कैपिलरीज, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द लंग्स, एल्वुलाई के आसपास जो होती हैं, दे विल एक्सचेंज या ऑक्सीजन विल एंटर फ्रॉम दिस एल्वुलाई टू द ब्लड वेसल्स नियर बाय लंग्स. तो वहां से वो उसमें एंटर कर जाती है. ठीक है. सो यस, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो जो ब्लड में एंटर की, नाउ द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर भी इसीलिए दिखाया है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा है. फ्रॉम लंग्स से जो हमारे पास आती है, वेन आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. सो दिस इज पल्मोनरी वेन. एक्चुअली द वर्क ऑफ दिस वेन इज टू कैरी दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. हार्ट के कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम पे. ये पार्ट्स जो है ये आपको क्लियरली मेंशन करना होगा. ठीक है. So yes, oxygenated blood via pulmonary vein enters into the left atrium of the heart from the lungs. From this left atrium, ऊपर वाला जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा through the bicuspid wall. कॉन्ट्रैक्ट होने से जो वॉल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगी and now the blood will enter into the left ventricle. Oxygenated blood ही है अभी भी ये, लेकिन वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हो जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स इटसेल्फ, देन हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल्व जो ओटा के अंदर प्रेजेंट होती है
वो ओपन करेगी एंड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंटर इनटू द ओटा. इफ यू रिमेम्बर द लास्ट वीडियो जहां पे मैंने हार्ट को डिस्कस किया था, तो आपको पता चलेगा. यस, दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट. यू कैन सी हियर द ओटा. पहले लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व. वेंट्रिकल में ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ओटा से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ. बॉडी इंक्लूड्स ऑल द सेल, ऑल द पार्ट्स वेयर एवर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ से ये बॉडी में जाता हुआ ब्लड जाएगा, कैपिलरीज में डिवाइड होगा एंड कैपिलरीज आर कनेक्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हैंड्स, लेग्स, आईज, ब्रेन, स्टमक, इंटेस्टाइन, ऑल द पार्ट्स. तो वहां पर वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा. And from here, exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. Oxygen will get utilized by the cell to get the energy from the food. तो वहाँ पे oxygen consumed हो गई. And by this activity, the cells releases out carbon dioxide. वहाँ से जो carbon dioxide है, it will enters into the blood of the capillaries only. फिर वो combine होके it will make a vein. Normal veins हमारी body की बनाएगी. So basically the veins will collect deoxygenated blood from all parts of the body to the right atrium. यहाँ पे right atrium contract करेगी, tricuspid valve होती है इसके अंदर, वो open करेगी and the deoxygenated blood enters into the right ventricle of the heart. From this right ventricle, when it contracts, it will transfer the deoxygenated blood through this pulmonary artery into the lungs. लंग्स में क्या होगा, फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन अंदर हो जाएगी, तो दोबारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाएगा. कई बार क्या होता है कि बच्चे इस चीज को ऐसे समझते हैं, डीऑक्सीजनेटेड मतलब खराब ब्लड, ऑक्सीजनेटेड मतलब अच्छा ब्लड. तो यस, वो हमारी बॉडी में एक बार अगर खराब हो गया तो अच्छा कैसे होगा? नो, deoxygenated means just the presence of carbon dioxide. Oxygenated means presence of oxygen. तो क्या होता है बेसिकली, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो लंग्स में ट्रांसफर होता ही रहता है. तो बेसिकली लंग्स हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, उसको ऑक्सीजन रिच बनाने का काम करते हैं. सो बेटा, दिस इज द सर्कुलेशन विच इज गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी. तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था डबल सर्कुलेशन करके एक टर्म. Here we can see that in the complete process, the blood enters into the heart 2 times. एक बार यहाँ से एंटर होके यहाँ से बाहर निकल गया ओटा के थ्रू, फिर यहाँ से दोबारा एंटर होके फिर बाहर निकला. So basically in this complete process, as the blood passes through the heart 2 times, so that means that's why it is known as double circulation. इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. I am repeating all the process again. तो अभी इसको दोबारा हम ब्रीफ में दोबारा सारा रिपीट करते हैं. ऑक्सीजन इज एंटर्स इनटू द लंग्स. इट एंटर्स इनटू द ब्लड थ्रू द एल्वुलाई पार्ट ऑफ द लंग्स. वहां पर ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है एंड इट एंटर्स इनटू द ब्लड वेसल्स. फ्रॉम द लंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट. फ्रॉम हियर इट एंटर्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. From left ventricle it enters into aorta, and from the aorta it transported or it circulated to all the parts of the body. From all the parts of the body, deoxygenated blood will collect by the pulmonary vein, by the veins to the right atrium. From this right atrium, when it will show contraction, the blood will enter into the right ventricle, and from this right ventricle, blood will enter into the lungs for again become for oxygenation again. उसको ऑक्सीजनेशन के लिए वो दोबारा लंग्स में जाता है. सो दिस इज द प्रोसीजर विच इज गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी. नाउ एक्चुअली 2 चीजें होती हैं. जब यहाँ से ब्लड एंटर करता है ना यहाँ पर वेंट्रिकल में, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं लब. ठीक है. और जब यहाँ से ब्लड एंटर करता है सेमिल्यूनर वॉल में लंग्स में जाने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास साउंड आता है एक डब. सो बेसिकली लब डब, लब डब, ये साउंड्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते हैं बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट विच वी कॉल्ड एज हार्ट बीट. हार्ट बीट क्या है, वो वाल्व्स ओपन होती हैं, जब दोबारा एकदम से क्रॉस होती है प्रेशर के साथ, तो वो एक हल्का सा साउंड प्रोड्यूस करती हैं. तो यस, दीज साउंड्स लब डब
लब डब is known as heartbeat. और as we all know that when heartbeat is not appropriate, अगर वो बहुत कम होती है, that means we are not having a normal health. और अगर ये बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, then the normal heartbeat क्या होता है, it's 72 to 80 times. अगर बहुत ज्यादा हाई हो गया, that means we are suffering from a disease like fever and all. ठीक है, सो यस इट शुड बी अप्रोप्रिएट. जब ये साउंड आता है, बाय एक्नॉलेजिंग दिस साउंड द डॉक्टर्स कैन से दैट वी आर ओके और नॉट. हार्ट बीट हमारा कितना है, तो उसके बेसिस पे वो हमें बताते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और यू आर अ हेल्दी पर्सन. ठीक है, सो यस नाउ आई एम थिंकिंग सो कि रिगार्डिंग दिस सर्कुलेशन ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर इन योर माइंड. And yes, if I will send you one video regarding that, so that you can be your visualization will be more clear about this circulation. So for that, I will definitely send one video with my video. Okay, now students, our next topic is heartbeat. So basically we are having three terms. मैं one by one करके आपको clear करूंगी. हार्ट बीट, हार्ट रेट एंड पल्स रेट. These three are three things. इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज भी कर सकते हैं. These are like synonyms. तो अभी क्या है, कैसे है, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स. ओके, फर्स्ट इज आवर टॉपिक इज हार्ट बीट. तो हार्ट बीट क्या होता है? सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स है ना, दे आर मेड अप ऑफ द मसल्स. सो मसल्स आर हैविंग द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ऑब्वियसली मतलब द सर्कुलेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली बाय द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. तो यस, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स यूज होती हैं, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल. सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट. जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं सिस्टोल. ओके, एंड जब ये रिलैक्स होता है हार्ट, तो उस टाइम पे हम इसको बोलते हैं डायस्टोल. सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, जिसको हम पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं. द सेम इज सिस्टोल एंड डायस्टोल. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उनका नाम चेंज कर दिया बस. ठीक है, तो वो तो कंटिन्यूसली होता ही रहेगा हमारी बॉडी में. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, पंपिंग ही नहीं होगा तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे करेगा? तो हार्ट ने ये काम करना है. बेसिकली वन कंप्लीट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन. हार्ट बीट इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ पूरा का पूरा और एक बार रिलैक्स हुआ, वो वन कंप्लीट साइकिल को हम बोलते हैं हार्ट बीट. तो हमारी हार्ट बीट होती है 72 to 80 टाइम्स पर मिनट, जिसको हम बोलते हैं हार्ट रेट. हार्ट रेट इज बेसिकली 72 to 80 हार्ट बीट पर मिनट. ठीक है, तो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को बोला हमने हार्ट बीट. व्हेन इट टेक्स प्लेस फॉर 72 to 80 टाइम्स इन अ मिनट, हमने उसको बोला हार्ट रेट. ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास इसको चेक करने के लिए द डॉक्टर्स आर हैविंग वन इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप इज हैविंग थ्री पार्ट्स. वन इज द ईयर पीस, टू ईयर पीसेज आर देयर, जो वो अपने कान में लगाते हैं. वन इज द रबर ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब होती है. एंड एट लास्ट द चेस्ट पीस इज प्रेजेंट, जिसके स्टार्टिंग में डायफ्रैगम लगा हुआ है. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस डायफ्रैगम? दिस डायफ्रैगम एनहेंसेस द साउंड ऑफ द हार्ट बीट. जो हार्ट बीट की वजह से जो साउंड आ रही है लब और डब की, उसकी साउंड को एनहेंस कर देगा, सो दैट अ डॉक्टर कैन हियर इट वेरी क्लियरली. उसको आराम से सुन सके और पता लगा सके एनी डिजीज इज देयर और नॉट. ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं. ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कई बार हम उसको हैंड पे चेक कर रहे हैं, आर्टरीज फ्लो कर रही हैं तो हम उसमें चेक करने की कोशिश कर रहे हैं. कभी हम यहाँ पर पल्स रेट चेक कर रहे हैं. तो ये क्या होते हैं? दीज आर लाइक पल्स रेट. हार्ट के पास हुआ तो हम उसको हार्ट रेट बोल रहे हैं. अगर हमने बॉडी में किसी भी और जगह पे उसको चेक किया तो हम उसको पल्स रेट बोल रहे हैं. वी कैन ऑल्सो से इट हार्ट रेट. दिस इज नॉट रॉन्ग, दीज टू आर सिनोनिम्स. लेकिन हम जनरली पल्स रेट बोलते हैं. ठीक है, तो पल्स रेट आर ऑल्सो द 72 to 80 हार्ट बीट पर मिनट. ये भी वही है एंड हार्ट रेट भी वही है. हार्ट रेट को हम जनरली हार्ट के पास चेक करते हैं, पल्स रेट को हम बॉडी में कहीं पर भी चेक कर सकते हैं.
and generally the pulse rate should equal to heart rate. हार्ट रेट जो हार्ट के पास है, पल्स रेट कहीं पर भी बॉडी में, तो यस बेसिकली दीज टू आर शुड बी इक्वल इन नंबर. अगर हार्ट के पास चेक करने पे भी मुझे 72 to 80 टाइम्स हार्ट बीट सुन रही है, इधर भी मुझे 72 to 80 टाइम्स हार्ट बीट सुन रही है, दैट मीन्स आई एम ओके. बट समटाइम्स यू कैन हियर लेस साउंड देन द हार्ट. तो ऐसा क्यों होता है? कई बार मान लो इस पर्टिकुलर रीजन में आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया. ब्लॉकेज आने की वजह से क्या होता है कि हार्ट में से जो ब्लड आया हार्ट में वो पूरा सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो इस वजह से क्या होता है कि हमें ब्लड कम सुनाई देता है और वहां पे साउंड कम आती है, तो पल्स रेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है. दैट मीन्स सम प्रॉब्लम इज देयर इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड चेक इट आउट कि क्या प्रॉब्लम है. अदरवाइज जर्नली पल्स रेट शुड बी इक्वल टू हार्ट रेट. Is it clear? Heartbeat is the one rhythmic contraction and relaxation of the heart. Heart rate is the heartbeat 72 to 80 times, 72 to 80 heartbeats per minute, and pulse rate is also the same, but generally we are checking it elsewhere except then heart. ठीक है? Now I think so it is clear to you. Now we are having one activity, how to make the stethoscope at home. You can take a wrong tube and one plastic और इस तरह का कोई भी एक open mouth का कुछ ले सकते हो, उसके पीछे ट्यूब अटैच करो and now you can use it like this. तो यहाँ से आप अपना पल्स रेट, हार्ट बीट कुछ भी चेक कर सकते हो. तो this is an activity which you can do by yourself, and I think so I am clear with all these things. So yes, now I am going to share with you one video regarding the same, and this is all about for today's video. Thank you.